Well, hello there. My name is Rauf Sheikh. Most of you probably know me as Roofy. That's my stage name. So, usually you see me on stage performing, and I don't speak much, I don't say much, but I figured I'd start a podcast, radio, or whatever you want to call this. This is just I'm doing a couple of series of this where we talk about music. We listen to certain types of music, and then I call my friends in the music field that know a bit about music, or more than me at least, and we talk about the different styles and genres of music, a little bit of a backstory. I mean, some of the history behind what music means to me. I mean, of course, growing up in the Western world, back in the days when there wasn't that many South Asian musicians around, or even just South Asian families around, it was my parents did a wonderful job in maintaining our culture, and they found like-minded folks around the town, and we started having these little parties and get-togethers where all these people would sing and play instruments, and these of course were all amateurs. One of the musicians that I first met was a gentleman by the name of Ram Das, God rest his soul. He was a tabla player, and I remember being very young and always being mesmerized by him playing tabla. So I used to sit right in front of him at all these gatherings, and I would just watch him play, and eventually that led me into wanting to play tabla. And of course, once you start learning an instrument, then you start understanding other aspects of music, and then you eventually branch out. And one of the instruments that I actually branched out to was guitar. Now, the reason I actually branched out to guitar instead was because I heard a band called Led Zeppelin, and the song that I heard was Stairway to Heaven. And the introduction of that song was with a beautiful guitar piece. And that's what led me to wanting to play guitar as well. And eventually, so many odd years later, you start branching out to different styles of music. And of course, the first style of music that I was privy to was, South Asian music. I remember, waking up on Saturday mornings with my dad playing Mehdi Hassan songs. And that's what would wake me up. And one of the things that I remember fondly was it wasn't, just like your regular Mehdi Hassan songs or ghazals or whatever. It was stuff that not too many people had heard about. So here's a track that I'd like you guys to hear. This track was recorded in 1979. I'm not sure where it was recorded, but I found this to be one of the most interesting tracks because it wasn't just the normal stuff that Mehdi Hassan did. It was more of a tumri. So take a listen, and then we'll talk about it after.
नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे मोरा तू आजा बसेरा नदिया किनारे मोरे पिछ बरुआ अरे बांस का बिरवा रे मोरे पिछ बरुआ बांस का बिरवा रे बांस का बिरवा बांस का बिरवा रे मोरे पिछवाड़वा पिछवाड़वा रे पिछवाड़वा बांस का बिरवा रे देख निशाने चला गए हो नदिया किनारे हो तुम आजा बसिया नदिया किनारे हो नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे मोरा नदिया किनारे Well, thank you for listening. I hope you guys enjoyed that. This is actually, I'm not sure if it's a tumri or it's a khayal or whatever, but a friend of mine, who I would consider an authority on this. He's much more learned about this than I am. I mean, just a backstory. I've been fortunate that I've had the opportunity to play tabla with Mehdi Hassan Khan Sahab because, as I mentioned before, he was a friend of my father's. So whenever he used to come to Canada, he used to stay with us and had the opportunity of learning from him and playing with him. I don't know in detail of what this song was, if it was a khayal or a tumri or whatnot, but I do have a very, very good friend of mine, like I mentioned, who's considered to be an authority on this, who knows a lot more in detail and is quite learned in this field. So I'm going to call upon him. His name is Tariq Hameed. I'm sure you guys know him well. Tariq, thank you for joining me. Welcome to the show. Thank you very much, Rufi. Kaise aap? Alhamdulillah, yeah, I'm good. Trying to keep my sanity with this COVID virus thing. So, but the only way to stay sane is, of course, to listen to this type of music. This type of music को सुन लो तो जरा सुकून भी मिल जाता है ना तो. Exactly. तो मैं अपने listeners. हमारा म्यूजिक जो है it's more spiritual actually than anything else. Exactly. तो सुन के आपको सुकून ज़्यादा महसूस होता है. Exactly. तो मैं एक्चुअली अभी यहाँ पर एक अपने लिसनर्स को एक चीज़ सुना रहा था. मेहदी हसन खान साहब ने 1979 में ये गाई थी. तो ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने अब्बा से सुना था. होता ये था कि सुबह सुबह सैटरडेज़ को ना छुट्टियों के दिन होता था, हम लोग सुबह उठते थे, आँख खुलती थी कि अब्बा जो हैं ये मेहदी हसन खान साहब की LP लगा के और लगाते थे और बैठ के सुनते थे, तो हमारी आँखें उससे खुलती थी.
तो मुझे एक याद है कि अच्छा अब्बू जो थे वो नहीं लगाते थे, जो मेन स्ट्रीम जो थी ना वो नहीं लगाते थे, वो कहीं ना कहीं से कोने खुदरे से कोई पुरानी निकल ऐसी जेम्स निकल के आते थे, हिडन, हाँ, जो वो सुनते थे। तो उनमें से एक ये थी जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये थी नदिया किनारे मोरा गाँव। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत असल में ठुमरी है देखा जाए तो ये। और खान साहब के बारे में मैं चंद एक बातें जरूर बताना चाहूँगा। मैंने खान साहब से मेरी मुलाकात रही है कुछ बार, और उसकी रीज़न और वजह उसकी ये थी कि खान साहब के एक बेटे जो थे मेरे क्लास फेलो थे, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे और हमने मिलके म्यूजिक जो पहला हमने बैंड बनाया था वो मैंने और खान साहब के बेटे थे शहजाद, हम दोनों ने मिलकर बनाया था। तो खान साहब घर में आना जाना हवाले से रहता था, उनसे मुलाकात भी रही मेरी उस हवाले से। बहुत ज़्यादा तो उनके साथ संगत नहीं हुई, खान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट और हमारा आने जाने, लेकिन बहुत प्यार से मोहब्बत से पेश आते थे। एक दो बार उन्हें रियाज करते हुए भी देखा। तो खान साहब की जो बैकग्राउंड थी वो बेसिकली पूरा घराना जो है ये क्लासिकल घराना था। खान साहब की ट्रेनिंग जो थी वो एज ए प्योर क्लासिकल सिंगर हुई थी। और आप राजस्थान में ये दरबार, राजस्थान का जो रॉयल कोर्ट था उससे ये एज ए क्लासिकल सिंगर जो ये घराना जो है वो कनेक्टेड था। और हमेशा खान साहब ने फिल्म में और गजल में गाने से पहले हमेशा क्लासिकल ही गाया करते थे। तो खान साहब के अंदर एक और क्वालिटी क्या थी, जब बाद में खान साहब फिल्म में आ गए और गजल में खान साहब ने गजल को टोटल एक नया रंग दिया और शहंशाह गजल कहलाए फिर ऑफ कोर्स, एक नया उन्होंने गजल का जो है वो आपको दिया। लेकिन खान साहब ने क्वालिटी क्या थी कि खान साहब अगर कोई गजल गा रहे हैं, कोई प्योर राग बेस्ड गजल, तो खान साहब के अंदर ये क्वालिटी थी कि उस गजल को पूरा ख्याल अंग दे सकते थे। और खान साहब इसी तरीके से जब वो ठुमरी गाते थे तो खान साहब में एक क्वालिटी थी कि उस ठुमरी को वो चाहे तो टोटल ख्याल में कन्वर्ट कर दें। तो ये क्वालिटी इस वजह से थी कि वो क्लासिकल पे इतनी कमांड थी, इतना सब कुछ में हासिल था कि वो उसको कन्वर्ट कर देते थे। ठुमरी नॉर्मली ठुमरी जो होती है वो मिक्स में गाई जाती है। ये ठुमरी भी कुछ मिक्स इसमें नोट्स लगे हैं, जो नदिया किनारे मोरा गाँव पूर्वी अंक की बेसिकली पूर्वी अंक की ठुमरी है। और इसको अगर आप देखें तो खमाच का इसमें आपको फ्लेवर बहुत, हाँ, खमाच का भी काफी फ्लेवर आया। हाँ जी, आपको इसमें जो है 2-3 राग जो है आपको कहीं और किसी जगह आपको जाके इसमें आप देखेंगे कि इसमें कहीं कहीं आपको लगेगा कि देश का अंग आ रहा है। हाँ, देश का भी अंग आ रहा है और ऐसा भी लग रहा था जैसे कि राग यमन में भी कुछ आ रहा था। तो बेसिकली ठुमरी है, ठुमरी में आप डिफरेंट फ्लेवर आप ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो पूर्वी और खमाच अंग जो है वो इसमें ज्यादा नुमाया है, नदिया किनारे मोरा गाँव। और अगर आप देखें तो खान साहब ने बिल्कुल इसको जो गाया है वो ख्याल के स्टाइल में गाया है। राइट, हाँ, तो दैट्स राइट। तो ये खान साहब, लेकिन खान साहब ने असल में ये चीजें खान साहब की घराने में पहले भी गाई जाती थी। तो खान साहब ने ये बहुत पहले भी गाई हुई है, इससे पहले भी। अगर आप 79 में आपने कोई रिकॉर्डिंग सुनी है तो उससे पहले भी खान साहब ने ये, उससे पहले भी बहुत बार ये मुख्तलिफ जगहों में प्राइवेट महफिलों में और बाकी जगहों भी चीजें गाई हुई हैं। गालिबन हो सकता है कि रिकॉर्डिंग जो पहली आपने सुनी हो या मौजूद हो वो 79 की हो या 77 की हो। हाँ, रिकॉर्डिंग पहले भी गाते रहे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो मैंने जो सुनी थी ये 1979 में हुई थी और ये अभी जो मैंने प्ले की है इसका बल्कि यूट्यूब पे भी है, तो उसका लिंक मैं अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका URL जो है यूट्यूब पे। तो बेसिकली वहीं से मुझे मिली है और इसमें लिखा हुआ था कि 1979 की रिकॉर्डिंग में से ये है शामिल। तो आई थिंक दैट टाइम आई वाज लॉन्ग प्ले ना, तो उसमें से उसके आपको थोड़ा थोड़ा उसके वो जो रिकॉर्ड प्लेयर का जो वो क्रिस्पनेस और शार्पनेस जो है ना उसकी भी उससे क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही थी। अगर आप थोड़ा इसको मजीद अगर आप सर्च करें तो खान साहब की यही ठुमरी जब मैंने सुनी थी, ये ठुमरी पहली बार तो मैंने सुनी थी ये कनाडा की ही रिकॉर्डिंग थी वो बेसिकली। हाँ। जो आपको सुनने वाले भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे, उसके बहुत मशहूर हमारे सिंगर सलीम रजा साहब वैंकूवर में रहते थे अपने आखिरी दिनों में और वहीं पर उनकी डेथ भी हुई। तो 77 में गालिबन, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है कि जो मैंने सुना था और उसके बारे में बात सुनी थी कि खान साहब जो थे 77 में वो कनाडा टूर पे थे, तो वैंकूवर में उन्होंने सलीम रजा साहब और खान साहब बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हाँ, राइट, बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो खान साहब जब वहाँ गए थे तो उनके घर
में एक महफिल की थी और उस महफिल में उन्होंने ये सुनाई थी, तो गालिबन वो रिकॉर्डिंग मैंने जब पहली बार सुनी थी तो वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। हाँ, उसके बाद फिर 77 के बाद भी फिर उन्होंने एक और मरतबा आई थिंक न्यूयॉर्क में भी ये न्यूयॉर्क में भी रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने, बाकायदा स्टूडियो में, एक स्टूडियो में उनको लेके गए थे, तो वो भी एल्बम मेरे पास आई थिंक कहीं है, लेकिन वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। इस तरह की जो चीजें थे खान साहब वो तब गाते थे खास तौर पे जब उन्हें लगता था कि ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सुनने वाले को बहुत अच्छा समझते हैं, राइट, डिफरेंट लेवल पे उसको समझते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या ऑफ कोर्स। हाँ, बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए तो आप उन्हें ज्यादातर वो चीजें सुनना चाहते हैं जो बहुत मशहूर हैं, right. जो बहुत लोगों ने सुनी हुई हैं और लोगों के जहनों में हैं, लेकिन जब खास सुनने वाले बैठे हुए होते हैं जिनका ताल्लुक म्यूजिक से होता है, तो खान साहब का दिल करता था कि मैं वो चीजें सुनाऊं जो कि मेरे अंदर हैं, जो क्लासिकल से हैं रिलेटेड हैं, या जो जिसकी बाकायदा तालीम उनके पास है और सब चीजें हैं, तो वो खान साहब वो चीजें बड़े मोहब्बत से और प्यार से सुनाया करते थे। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो जहाँ तक मुझे पता है इसके बारे में थोड़ा सा, मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत ज्यादा कोई नॉलेज है म्यूजिक का। नहीं यार, to be honest with you, मैं तो सच बात बताऊँ, I rely on you to tell me a lot of the background information, because साफ बात ये है कि तुम उस ज़माने में I mean you उस माहौल में पले बड़े हो, तो तुमने तो देखा हुआ है exactly, तो a lot of the inside scoop I would say ये तुम्हारे पास होगा। हाँ, मैं तो बहुत far removed था ना इन चीज़ों से, मैं तो being in Canada right at that time। तो रूफी बात ये कि हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो ऐसे ही हम जब आपस में बात करते हैं और किसी से पूछते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, और खासकर म्यूजिक से रिलेटेड लोगों से, तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। हाँ, सही बात है। और आर्टिस्ट जिंदा और सही वही रहता है जो ये अमल जारी रखता है। द मोमेंट आप ये कहते हैं कि मैंने सीख लिया है, वो आपका आखिरी दिन होता है। एग्जैक्टली, वही खत्म हो जाता है, आर्टिस्ट उस दिन मर जाता है। हाँ, सही बात है, वो क्रिएटिविटी वहीं खत्म हो जाती है, एट दैट पॉइंट अब ये चलते रहने का नाम है। हाँ नहीं यार, तारिक, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। ऑफ कोर्स हमारे पास I don't have that much knowledge in this type of genre of music. मुझे बहुत समझदार और बहुत अच्छा म्यूजिक को समझने वाले हैं रूफी, आप बहुत अच्छा म्यूजिक को समझते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक को करते हैं, यू हैव वेरी गुड ईयर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके कान बहुत अच्छे हैं। नहीं यार, थैंक यू सो मच, म्यूजिक में बहुत ज़रूरी है। नो थैंक यू मैन, आई मीन मैं और तुमने तो काफ़ी काम किया हुआ है साथ में, तो आई मीन वी प्ले ऑफ ईच अदर, आई लर्न फ्रॉम यू वेरी मच सो, तो आई रियली अप्रिशिएट कॉलिंग मी, और मुझे मतलब बात करने का और सब चीज़ों का, और दिल की बात जब करते हैं, जब म्यूजिक की बात होती है, क्लासिकल म्यूजिक की बात होती है, और खान साहब मेडिसन साहब की बात होती है, तो वो तो फिर दिल के अंदर से निकलती है। एग्जैक्टली No, I really appreciate it, Tariq. Thank you so much. If I have any other questions, भी और भी गाने लगाऊंगा, और and I think if anything comes up of this genre, मैं बिल्कुल फिर कॉल कर लूँगा। जरूर, थैंक यू रूफी, तुम्हें और तुम्हारे तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। Thank you, यार। All right. खुदा हाफिज़। Take care. Bye bye. Well, that was my friend Tariq Hameed. Thank you very much again, Tariq, for your wonderful insight on Mehdi Hasan, the great legend, the man who revolutionized ghazal singing. So in our next episode, I think what we're going to do is probably move on towards a lighter genre of music, a lighter style, and we'll probably touch base on Bollywood, and of course we'll touch base on other aspects of music as well. So with that being said, I really hope you enjoyed listening to this. If you have any suggestions or comments, please feel free to drop me a line or a message, and I will do my best to accommodate every request. In the meanwhile, take care of yourselves, take care of your families, and stay safe and stay healthy. Until next time, this is Rauf Sheikh. Bye-bye.